this chapter we have seen that how we can create the if else statement. Okay, the basic some programs I have already explained you, but now from today we will see it in a theoretical form also. So see, everyone knows that what we are going to learn in this chapter. So in a flow of control you will learn about the types of statement flow control, about the if statement, repetition of task means you will use here the loop concept, then range function, and about the iteration and looping statements. Okay, so see, the first is here, there is no need to introduction because we have seen that what we have to learn here. Okay, so see here, the next main topic is here, types of statement. Okay, how many types of statements are here? So see, there is three types of statement. First thing we should to know that what is the statement kya hota hai. Statements are an instruction given to the computer to perform any kind of action. Yes. मैम आपने जो अभी बताया वो रिपीट कर दोगे? मैम मेरा सिर्फ नेट इशू था तो मैं समझ नहीं पाया. Okay, I have Priyanshu, don't worry, I have just started it. Okay, so don't worry it. Okay, I have started. वापस एक्सप्लेन कर रहे हो आप? Yes, because when I have explained that time, that was the arrangement. Okay, arrangement period, and that time some students were not present. Okay, so don't worry. Yes, so बाकी students तो इसी period में आए, so it is important ना कि उनको भी समझ में आना चाहिए. Okay, so it's okay, don't worry, आपका concept और strong हो जाएगा इसके लिए. अगर कहीं कुछ 1% आपका रह गया होगा, so it will be clear. Okay, so see, types of statement में first thing is here, what is a statement? The statement are the instruction given to the computer to perform any kind of action. Okay, be it data movement and be it making decision or repeating action. See, statement can be anything. One sentence, okay, one line, what you are writing in a coding, okay, one in a Python programming, that line is called the statement. Statement can be anything, like if I'm writing here, suppose see it here, if I'm writing here print hello. Okay, I have written this line, so you can see here hello has printed here. So this is a statement. It is a one kind of statement. Suppose you are writing here a is equal to 20 and b is equal to 40. मैं एक बार वापस रीजन कर रहा हूं, आवाज कट कट के आ रही है. Yes, Priyanshu. मैं कह रहा हूं एक बार वापस रीजन कर लूं, आपकी आवाज पता नहीं कट कट के आ रही है. Okay, आप rejoin करो. I am waiting for you. Okay, do it fastly. Have you joined, Priyanshu? कर लिया. Okay, so see, I have written here a is equal to 20, b is equal to 40. Okay, so आप ये देखोगे कि एक में हमने 20 स्टोर किया, b में 40. So it is also a statement. Okay, this single line is a statement. This single line is also a statement, and it is also a statement. Okay, suppose आपने a और b की वैल्यू को प्रिंट किया, like print a. So it is also a statement. Means whatever you are writing on the programming, all are called the statement. Okay, it is a single statement. Okay, so means कि एक instruction we are giving the instruction. What instruction we are giving here? A is equal to 20 means we have given the instruction to the compiler that store the 20 into the A. Okay, if we are saying about this statement print A means we have given the instruction that आप A को print करो. Okay, here we have also given the instruction that print the hello. Okay, hello को print करो. So it is a instruction. What is instruction? Instruction is a statement is a instruction that we give to the compiler. Okay, so उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. सो इंस्ट्रक्शन आपके कितने कई टाइप्स के हो सकते हैं. लाइक यू कैन सी देयर इट शुड बी अ एम्प्टी स्टेटमेंट, simple statement, and compound statement. Okay, there is a three types of statement. First main thing is here that you should to know about the statement की statement क्या होता है, बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी. So statement is a instruction. Instruction के बेस पे see it here कि आप instruction के बेस पे ही कुछ करते हो. Suppose मैंने आपको यहाँ पे मैंने कहा कि आपको I am giving some questions, you have to complete it. Okay, so आप क्या कर, I have given the instruction ना, मैंने instruction दिया, according to that instruction you will complete the homework. Okay,
उसी क्वेश्चन को आप करोगे। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है कि हम कुछ ऐसा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्टेटमेंट का मतलब है कि वो एक इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको फॉलो करना है, और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो इन प्रोग्रामिंग फील्ड, इन अ पाइथन फील्ड, देयर इज द एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। सो नाउ सी कि हम वन बाय वन इसको हम देखेंगे कि एम्प्टी, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। तो सी फर्स्ट वन इज हियर द एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी का मतलब सबको पता है कि खाली, ओके, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द नल स्टेटमेंट। नल का भी मतलब होता है एम्प्टी, इट्स मीन नथिंग, इवन नॉट द जीरो आल्सो। So empty statement के लिए what we use here, we use the pass keyword. You can see it is little bit blur, but it is you can see it clearly. Okay, so ये क्या है आपका pass is a keyword that is used to show the empty statement. empty statement को show करने के लिए हम यूज करते हैं। अब see it here कि suppose आप आपने कोई एक स्टेटमेंट ऐसी लिखी, एक कोड ऐसा लिखा जिसमें आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, कि आप उसमें कुछ भी लिखना नहीं चाहते हो, कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हो। ओके, सो व्हाट यू कैन डू दैट टाइम, यू कैन यूज द पास कीवर्ड। आप पास कीवर्ड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एवरीवन नो द मीनिंग ऑफ, एवरीवन नो दैट हाउ टू यूज द इफ। ओके, इफ को कैसे यूज करना है। सपोज आई एम नॉट राइटिंग इट, ओके, मैं कोड नहीं लिख रही हूँ बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम, so I am doing the copy paste here. So suppose yes, यहाँ पे देखो कि हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था, what we have decided here कि if student will get the percentage above 90, if 90 or above 90, so what it will, he or she will get scooty. ओके, हमने कुछ ऐसे ही लिखा था, बट आफ्टर दैट वी हैव डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम 90 से अबव आएगा तो हम बाद में सोचेंगे कि क्या देना है, बट टिल नाउ आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग। तो आपने क्या कहा कि आपने डिलीट कर दिया इसको। ओके, आपने कहा कि मुझे इसमें अभी कुछ भी नहीं लिखना है, मैं इसको खाली छोड़ना चाहता हूँ, चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, मैं खाली छोड़ना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहती हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आपको ये काम करना है, आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग लाइक दिस। ओके, सो मैं इसको एम्प्टी छोड़ना चाहती हूँ। तो व्हाट मैंने उसको डिलीट कर दिया स्टेटमेंट को, मींस प्रिंट स्कूटी जो लिखा हुआ था मैंने उसको डिलीट कर दिया। सो अब यहाँ पे क्या है, इफ आई विल रन द कोड सो इट विल गिव द एरर। यू कैन सी एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, यानी कि इस कॉलम के बाद आपको एक स्टेटमेंट देना कंपलसरी है। आफ्टर द कॉलम यू हैव टू गिव द स्टेटमेंट। आप एक ही स्टेटमेंट दो, कुछ भी दो, आप a इक्वल टू 20 ही कर दो, एनीथिंग यू कैन राइट, बट एटलीस्ट स्टेटमेंट हैज टू प्रोवाइडेड है। ओके, स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है यहाँ पे, बट हमने डिसाइड किया, बट वी हैव डिसाइडेड दैट वी हैव नॉट प्रोवाइड एनी स्टेटमेंट। so what we can do now, so just you have to write here the pass. Okay, pass is a keyword, it is used for the empty statement. अगर हमें कहीं empty statement show करना है तो what we can do, we can use here the pass keyword. Okay, so now see it here, I have not done anything. Okay, मैंने कुछ नहीं किया, I have only written here the pass keyword. Yes प्रियांशु, yes प्रियांशु, मैम एक डाउट है। हाँ एक सेकेंड, अभी डाउट आप पूछना। फर्स्टली लेट मी रन द कोड। सीट हियर कि मैंने यहाँ पे पास कीवर्ड यहाँ पे लगाया, और नाउ सीट हियर आपका देखो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। ओके, आपका कोई एरर नहीं आया लाइक लास्ट वन। ओके, सो यू हैव रिटन हियर सपोज 30, सो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड इट विल प्रिंट, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ओके, आपका इसने ये प्रिंट कर दिया। सपोज अगेन यू हैव रन द कोड एंड नाउ यू हैव एंटर हियर द 45, so you will get the watch. Okay, so you have seen that कि अगर आपने यहाँ पे किया, means अगर आप empty statement show करना चाहते हो, so what you can do, you can simply you can write the pass. pass मतलब null, वहाँ पे हमें और कुछ भी लिखना नहीं है। Okay, so is it clear to all? Okay, yes, yes okay, but मैम अभी हाँ, अगर किसी ने डाल दिया 90, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड ही यही किया है कि अगर इससे मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आप पास कर दो। पास मीन्स आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। तो 97, सो ये आपका पास हो जाएगा, इस पूरे ब्लॉक से, इस कोड के ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इस वजह से ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? yes मैम। यस, नाउ प्रियांशु से योर डाउट।
मैम जैसे ये आपने परसेंटेज मैम दूसरी जो एलिफ वाली परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 डाली, तो मैम अगर 50 से बड़ी होगी तो बाईसाइकिल होगी, हाँ और मैम 50 की इक्वल होगी तो भी बाईसाइकिल होगी। हाँ बिल्कुल। और मैम अगर फिर परसेंटेज 50 से कम होगी तो वॉच होगी। यस, अगर 50 से कम होगी तो आपकी 50 से कम और 33 से ग्रेटर होगी। ओके, 30, यस 33 और 33 से ग्रेटर होगी तो आपका क्या होगा, वॉच। तो मैम अगर 50 से बड़ी होगी तो मैम अगर 50 से बड़ी जैसे कि 87 85 डाले तो मैम 87, उसमें यस, क्या होगा? आपका डाउट मैं समझ गई कि क्या है। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैम यहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और ये अगर इसको हम देखें तो ये अगर 50 से बड़ी हम देखें तो 90, 80, 70, 97, 99 लाइक दिस ऐसे हो सकता है ना? यस यही है मैम, ना डाउट? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सी कि आपका डाउट जेन्युइन है, बट यहाँ पे आप ये देखो कि पहले तो ये फर्स्टली इट विल चेक फ्रॉम हेयर ना, पहले यहीं से चेक करेगा। यस मैम। अगर 90 आपने 1 एंटर किया इसके अंदर तो वो पहले यही चेक करेगा, और कंडीशन ट्रू होगा तो वो इस स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने वो स्कूटी लिखा है तो वो आपका स्कूटी आ जाएगा, बट यू हैव रिटन हियर द एम्प्टी स्टेटमेंट। आपने पास कीवर्ड लगाया, तो इसका क्या काम है, इसका काम है कि वो फिर इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, इसको कुछ प्रिंट नहीं कराना है, तो वो इट विल कम आउट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, दीज स्टेटमेंट। ओके मैम एक बार समझ नहीं आया वापस में। ओके, सीट हियर कि आपका डाउट यही है कि मैम आपने यहाँ पे 90 अबव लिखा है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे ग्रेटर देन 50 है। ओके, ग्रेटर देन 50 है, 50 ग्रेटर देन 50 का मतलब है कि अगर 99 भी आए तो उसको बाइसाइकिल मिलना चाहिए। आई थिंक यू आर सेइंग दिस ना, यस मैम, यही कह रहा हूँ। है ना, कि अगर 90 से अबव भी आए तो भी बाइसाइकिल मिलना चाहिए। क्योंकि मैम 50 यस, के अब तो मैम कुछ भी हो सकता है। हाँ 50 के अबव कुछ भी हो सकता है कि कुछ भी हो तो आए, बट आप ये देखो कि उसको पहले ही यहाँ पे स्टॉप कर दिया जा रहा है। 90 या 90 से अबव अगर आता है तो उसको यहीं पे उसको स्टॉप कर देते, आगे इंक्रीज ही नहीं होने देते, आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं उसे। तो मैम अगर 90 से कम होगा तो 90 जैसे से कि अगर कम 90। होता है तो फिर वो यहाँ पे आएगा, सपोज 89, आई एम राइटिंग हियर द 89। ओके, तो 89 किसके उसमें आपका कंडीशन ट्रू होगा, इसी स्टेटमेंट में ट्रू होगा, वो यहाँ पे ओके इसने चेक मैम, किया। ओके। सपोज यू हैव एंटर हियर द, आई एम रनिंग द कोड अगेन। सी, सपोज आई एम एंटरिंग द डेटा 89, सो सी कि ये पहले आपका ये स्टेटमेंट चला, देन यू कैन सी 89 वी हैव एंटर्ड, आफ्टर दैट इट विल कम ऑन दिस स्टेटमेंट। तो इसने चेक किया कि क्या परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। So tell me that it is correct or true or not? Yes, Priyanshu? एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, you have entered the value 89 to the percentage. यस मैम। Yes. So after this statement, it will come on this statement. It will check na if percentage is greater than or यस equal to 90. The condition true or false? मैम, फॉल्स होगा। False. If condition is false, then it will jump on this statement. ओके, ओके ये मैम। कंडीशन फॉल्स होते ही वो इस पे आ जाएगा। एंड मैम नाउ मतलब ये मैम मतलब ये है कि वो जो पहली वाली कंडीशन है मैम उसमें देखेगा कि इक्वल 90 है, अगर मैम 90 से बड़ा होगा तो इक्वल होगा, तो मैम तभी यस मतलब कुछ नल होगा। तो और मैम अगर 90 से कम होगा तो फिर बाईसाइकिल। यस, अगर उससे ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा तो इट विल जंप हियर ऑन दिस स्टेटमेंट। अब ओके यहाँ मैम। पे परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, 50 से बड़ी होनी चाहिए। सो यस, कंडीशन यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ओके, यस मैम, जब आ यहीं रहा पे, है। हाँ यहीं पे कंडीशन फुलफिल हो गया तो वो आगे मूव करेगा ही नहीं। ओके, सो ये क्या प्रिंट कर देगा, इट विल प्रिंट द बाइसाइकिल। यस मैम। ओके, so it is clear. So now Sagar wants to ask something. 33% वाला पहले लिख। अब सीट हियर कि सागर का क्वेश्चन है कि मैम ये 33 हम पहले लिखे और 50 लिखे फिर बाद में 90 लिखे लाइक दिस। ओके, सो इसमें क्या है कि इसमें आपका फिर आंसर बिल्कुल ही गलत आ जाएगा। ओके, 33 से अगर मान लो सपोज आपने 33 यहीं पे लिख दिया, ओके, अकॉर्डिंग टू द सागर क्वेश्चन, कि सागर ने कहा कि यहाँ पे 33 हो जाए और यहाँ पे सपोज सॉरी यस यहाँ पे जो है 90 हो जाए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये तो एवरी टाइम ये फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही आपका रुक जाएगा। सपोज आपने क्या एंटर किया यहाँ पे, सपोज यू हैव एंटर हियर द
33, आपने 33 एंटर किया तो भी यहाँ पे रुकेगा, अगर आपने 95 भी एंटर किया तभी भी यही रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज 33 से तो ग्रेटर है। ओके, तो हम इस तरह से कोडिंग नहीं करते, हम अपने अकॉर्डिंग लॉजिक लगाते हैं। ओके, हम वो भी चीजें देखेंगे कि हम दो कंडीशन लगा दें कि इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी, बट वो हम बाद में देखेंगे। तो नाउ फर्स्टली टेल मी दैट एम्प्टी स्टेटमेंट कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? Yes? Yes, ma'am. Clear. Yes. So now I'm moving on the next. There is a simple statement. ये कुछ भी नहीं, simple statement means whatever you are writing on the ideally all syntax, all statement are called the simple statement. Like मैम एक चीज पूछना था, जो ये पास है ये कीवर्ड, मैम ये खाली इफ के बाद लग सकता है या एलिफ में, एल्स हाँ, कहीं एलिफ पर भी में भी लगा लग सकते सकता हो है? आप, इफ में लगा सकते हो, एलिफ में लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। सपोज आई एम राइटिंग हियर, आप कहीं भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। यहाँ पे स्कूटी लिखा और हमने कहा कि आप, आई एम चेंजिंग द कंडीशन हियर आल्सो, 90 एंड आफ्टर दैट आपने कहा कि मुझे जिसके भी 33 से ग्रेटर आएंगे उसको हम कुछ भी नहीं देंगे। एम्प्टी, ओके, मीन्स हम कुछ शो नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे, इट इज सरप्राइज, लाइक अ सरप्राइज। सो नाउ यू हैव रिटन हियर द 33, सो सी इट हियर कि 33 है, इसका मतलब कि यहीं पे कंडीशन ट्रू होगा। ओके, ऑब्वियसली वी नो दैट, सो यू कैन सी हियर इट हैज नॉट प्रिंटेड एनीथिंग। ओके, ओके मैम। Yes. then after that we have seen here the empty statement and the next is the simple statement. Simple statement का मतलब क्या है कि whatever statement you are writing, okay, any single statement is called the simple statement. See, it is a single statement, it is also called the simple statement. Okay, and these are not a simple statement. Okay, ये simple statement नहीं है। ओके, सिंपल स्टेटमेंट क्या है? जो भी आप सिंगल, ओके, यू कैन से इट इज आल्सो अ सिंपल स्टेटमेंट। आप कह सकते हो इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड द सिंपल स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी सिंगल लाइन इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। ओके, सिंपल स्टेटमेंट, बट इसको हम आगे हम दूसरे नाम से देखेंगे, ब्लॉक के नाम से। ओके, हम वी विल सी इट हियर। तो सी कि आपका क्या सिंपल स्टेटमेंट, लाइक a इज इक्वल टू 20, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट। b इज इक्वल टू 30, सिंपल स्टेटमेंट। d is equal to 40, simple statement is also called the simple। x is equal to a plus b, ये भी आपका एक simple statement है। So firstly see the theoretical concept what it is saying. Any single executable statement is a simple statement in Python. For example, आपने लिखा input name, input enter your name। okay, ये भी एक आपका statement है। अगर आपने कुछ print किया, like आपने print किया print x, it is also a simple statement। okay, हर एक लाइन उसे हम सिंपली एक सिंपल स्टेटमेंट कह सकते हैं, वी कैन कॉल इट स्टेटमेंट। ओके, सो इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस ईच एंड एवरी लाइन जिसको आप एग्जीक्यूट करते हो इज कॉल्ड द सिंपल स्टेटमेंट। ओके, देन नेक्स्ट वन इज हियर द कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब है कि ग्रुप ऑफ कोड, ओके, एक साथ कई सारे उसके अंदर पार्ट होने चाहिए। सो सी इट हियर, if this block is the compound statement। okay, ये है आपका, ये compound statement है, it is also a compound statement। अब इसमें compound statement का क्या मतलब है? so firstly see the theoretical concept। compound statement में क्या होता है? एक header होता है and after that we use the column, you can see 2 dots। okay, 2 dot होते हैं and after that डॉट के बाद आप क्या करते हो? उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखते हो, यू कैन सी इंडेंटेशन। आप इसके अंदर कितनी भी लाइनें लिख सकते हो, लाइक प्रिंट एनीथिंग। आपने 2 लाइन लिखा, प्रिंट 2, ओके, एनीथिंग। सो सी इट हियर कि इस स्टेटमेंट के अंदर आपने कितनी लाइनें लिखा है? देयर इज अ 3 लाइन। अगर ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होता है, ये कंडीशन ट्रू होता है, तो ये क्या करेगा? इट विल रन दीज 3 लाइन ऑफ कोड। ओके, बिकॉज दीज 3 लाइन्स आर पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये तीनों लाइनें जो है इसके स्टेटमेंट के पार्ट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, इज इट क्लियर?
इट इज ऑल्सो Yes, अ ma'am. कंपाउंड स्टेटमेंट. यस, ओके. क्यों? क्योंकि इसका ये कॉलम यहाँ पर है, इट इज अ हेडर. Okay, and after the column we have written some statement, and this statement is a part of this header. Okay, so see here, compound statement. Compound statements represent a group of statement executed as a unit. The compound statement of Python are written in a specific pattern as shown below. See it here कि आपका क्या करते हैं, compound statement का header लिखते हो, then आप क्या करते हो यहाँ पे कॉलन यूज करते हो, एंड आफ्टर दैट इंडेंटेड बॉडी. आप यहाँ पे देखो कि कुछ स्पेस देने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने लाइंस लिखते हो जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो. ओके, सो यू कैन सी कि अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट देखोगे, यू विल सी विद द इफ, फॉर और व्हाइल. ओके, आप इफ, फॉर और व्हाइल के साथ देखोगे कि एवरी टाइम इसके इनके ग्रुप में कुछ नंबर ऑफ कोड्स रहेंगे, नंबर ऑफ लाइंस रहेंगे. वो लाइंस तभी एग्जीक्यूट होंगे जब वो ब्लॉक के कंडीशन ट्रू होंगे. ओके, अगर उन ब्लॉक के कंडीशन ट्रू नहीं होंगे तो वो लाइंस आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे. तो दिस इज योर कंपाउंड स्टेटमेंट. मेन थिंग इज योर कंपाउंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एज अ यूनिट. जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है वो एक ही साथ एग्जीक्यूट होगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल सी इट हियर, इफ दिस कंडीशन विल ट्रू, देन आपका क्या होगा, ये तीनों स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे बिकॉज दीज आर इन अ ग्रुप. ओके, दीज आर द पार्ट of this statement. Is it clear to all? Yes, Romendra, Sagar, yes, Vishal, Devashish, is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, good. So see, the next is here statement flow. हाँ बोलो. मैम, जो आपने अभी बताया कि इफ परसेंटेज, जो 90% फर्स्ट लाइन है वो हमारी हेडर लाइन होगी और बाकी जो ये नीचे का है ये बॉडी होएगा. यस, ये इसके बॉडी पार्ट है. ठीक है, ये हमारा हेडर है और हेडर के अंदर जितने भी आपके स्टेटमेंट होंगे, इट इज ऑल आर द पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, ओके मैम. यस, सो सी स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल. ओके, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, फ्लो का मतलब क्या होता है, मूविंग, लाइक मूविंग. ओके, कि हम इधर से उधर मूव करना. तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल मीन्स कि जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं उस वो आपका हो सकता है कि आपका वन बाय वन सारा एक ही साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, या इसके अलावा व्हाट वी वांट कि हम उसे कंट्रोल करें, हमें अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट इट विल एग्जीक्यूट. ओके, जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो हम जब चाहें तभी आपका एग्जीक्यूट हो. ओके, अब हम जब चाहे का क्या मतलब है, हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि अब एग्जीक्यूट हो जाओ, अब मत एग्जीक्यूट हो. नो, इट इज नॉट मीन दैट. ओके, फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ कंट्रोल. अब सी इट हियर, आई एम गिविंग द एग्जांपल. सी इट हियर कि यू एवरीवन नोज दैट कि ऑल आर द स्टेटमेंट, ये ईच एंड एवरी लाइन आर कॉल्ड द स्टेटमेंट, सभी को स्टेटमेंट कहते हैं. ओके, बट यू कैन सी कि अगर मैं इसकी बात करूं, ओके, तो दीज आर द सिंपल स्टेटमेंट. तो ये सिंपल स्टेटमेंट क्या है, वन बाय वन सबको एग्जीक्यूट होना ही है. पहले ये एग्जीक्यूट होगा, देन ये एग्जीक्यूट होगा, देन ये, देन ये, देन ये. ओके, वन बाय वन ये सारी मींस 5 लाइंस विल एग्जीक्यूट. बट अगर आप यहाँ पे देखोगे इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में देखोगे तो ये लाइन तो एग्जीक्यूट होना ही होना है. आफ्टर दैट अगर इस लाइन पे आने के बाद ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद देयर इज नो श्योरिटी कि आपकी ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट होगी. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो देन दीज 3 लाइन विल एग्जीक्यूट. ओके, अदरवाइज ये क्या करेगा, इसको स्किप करके वो इस पे मूव कर जाएगा. ओके, और अगर ये लाइन स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा तो जाकर के ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये क्या होगा कि इस पे मूव कर जाएगा. सो सी इट हियर वी हैव कंट्रोल द स्टेटमेंट, कि हमने स्टेटमेंट के फ्लो को कंट्रोल किया है कि किसको कब एग्जीक्यूट करना है. अगर इसके रेंज में आ गया, 50 से अबव वैल्यू रहेगी तो आप इसको कर दो, 90 से अबव रहेगी तो आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो. ओके, सो इट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, कि हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं. सो कंट्रोल. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आ गया ये मींस बेसिक कंसेप्ट. ओके, सो नाउ सी कि आपके कितने टाइप्स के होते हैं. सो लेट अस डिस्कस. इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट में बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली, सिलेक्टिवली और इटरेटिवली. सी इट हियर, सिक्वेंशियली का मतलब क्या है कि वन बाय वन सारा एक एक करके करेगा. सो सी, ये जो अभी मैंने आपको बताया स्टेटमेंट कि ये जो आपका फ्लो करेगा या रन करेगा वो सिक्वेंशियली, यानी एक के बाद एक. a इक्वल टू 20, देन b इक्वल टू 30, d इक्वल टू 40, x इक्वल टू a प्लस b प्रिंट x. सीक्वेंस में सबने किया. ओके,
और सिलेक्टिवली का मतलब क्या है कि वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इट विल सिलेक्ट कि किसको एग्जीक्यूट करना है किसको नहीं करना है। तो सी अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये सारा स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द कोड विल नॉट एग्जीक्यूट। ओके, और रिपीटेडली, ओके, और या यू कैन सी इटरेटिवली, इसका मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूअसली इटरेट करेगा यानी कि लूप में चलेगा। ओके, तो हम इसके बारे में हम आगे देखेंगे, बाकी मीन्स वन बाय वन वी विल सी इट, बट फर्स्टली सी इट हियर sequence. The sequence construct mean the statement are being executed sequentially. This represent the default flow of the statement. Every Python program begins with the first statement of program. Each statement in turn is executed. When the final statement of program is executed, the program is done. Sequence refers to the normal flow of control in a program and is the simplest one. Okay, ये simplest one है जो अभी आपको बताया कि वो one by one करके आपका सारा रन करना ही करना है। और ये आपका क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो, आपने जब भी बनाना सीखा है, तो व्हाट यू हैव सीन कि आपका प्रोग्राम जो है एक एक करके सारा रन करता है। ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। देन देयर इज अ सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है कि सिलेक्शन में आपके ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आपको ये स्टेटमेंट आपको execute करना है। So see, the selection construct means the execution of a statement depending upon a condition test. If a condition evaluates to true, a course of action is followed, otherwise another course of action. अब देखो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होता है तो आपका ट्रू वाला पार्ट चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका वो फॉल्स वाला पार्ट चलेगा। ओके, सो सीक्वेंस और सिलेक्शन आपको समझ में आ गया है सभी को? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Okay, so now I am moving on the next one. Next is the repetition, iteration and looping concept. Okay, ये सारी चीजें एक ही है। Okay, repetition, iteration, looping. तो main thing is here, looping का मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली चलते रहना। Okay, तो अब यहाँ पे क्या है कि what is the use of the लूप और या इटरेशन का क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है। तो सी कि हम ये थ्योरी पढ़ने से पहले हम एक प्रैक्टिकल छोटा सा देखेंगे कि क्या है मीनिंग। सी फर्स्टली कि टू परफॉर्म द रिपीटेशन और इटरेशन और लूपिंग कंसेप्ट वी यूज टू कीवर्ड। ओके, वी यूज टू कीवर्ड एंड कीवर्ड नेम इज हियर। द फर्स्ट वन इज हियर द फोर। ओके, देयर इज अ फोर एंड द सेकंड इज हियर while. आपका सेकंड क्या है, while. These are the two keywords that is used for the iteration, or you can say it be used for the loop. देखिए हम लूप के लिए यूज करते हैं। अब इन दोनों कीवर्ड का यूज क्या है, दोनों कीवर्ड का मेनली यूज यही है कि अगर आप किसी भी काम को रिपीटेडली, ओके, और मींस कंटिन्यूअसली आप करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दीज टू कीवर्ड्स। ओके, सी कि ये दोनों क्या है, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। आपने अगर देखा होगा, कई बार आपने टीवी में, कार्टून में देखा होगा कि एक मींस एक रोलर टाइप में होता है और एक चूहा, एक रैट क्या होता है, उसमें कंटिन्यूअसली इस विधम से मूव करता रहता है। ओके, या अगर हम कहें तो हम अपने रियल लाइफ में देख लेते हैं वॉच को। वॉच क्या है, घड़ी का काम क्या है, वो धीरे धीरे करके आपका मूव करते रहता है, चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। लेकिन वो स्टॉप कब होता है, हर चीज का कुछ ना कुछ स्टॉप होने का कोई ना कोई एंड होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। तो वो स्टॉप कब होता है आपका वॉच, जब उसमें सेल खत्म हो जाता है। तो उसमें क्या कुछ कोडिंग ऐसी की कि अगर इसका सेल खराब हो जाए तो आप उसको स्टॉप कर दो। ओके, सो ऐसा ही कुछ काम हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो वॉच जो चलता है तो वॉच में नंबर्स भी इंक्रीज होते हैं, पहले 1 दिखाता है, फिर 2 दिखाता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, लाइक दिस, और फिर वो रिपीट करता रहता है उसी को ही। ओके, तो सेम हियर यहाँ पे क्या है कि ये लूप तब तक आपका चलता रहता है जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलता है, दोनों की बात है। ओके, सो सी आई एम शोइंग हियर सम सिंटेक्स, 1 और 2 लाइन ऑफ कोड। ओके, मैं 2 लाइनों का कोड यहाँ पे लिखूंगी सिर्फ ओनली टू एक्सप्लेन यू अबाउट द इटरेशन कंसेप्ट। बाकी इसको हम ब्रॉड वे में देखेंगे बट इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो सी कि सपोज व्हाट वी वांट, अगर मुझे, मैंने कहा कि 1 से लेकर के मुझे 10 तक, ओके, 1 से लेके मुझे 10 तक के नंबर प्रिंट करना है। सो इफ आई विल गिव यू द टास्क देन व्हाट विल यू डू? ऑब्वियसली आप कहोगे ठीक है मैम हम कर लेंगे। आपने a इक्वल टू 1 किया, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 4 5 मीन्स आपने 10 नंबर के लिए 10 वेरिएबल ले लोगे।
क्यों लोगे? क्योंकि आपने अभी तक इतनी ही चीजें सीखी है, तो ऑब्वियसली हो कि उसके बेस पे ही आप अपना लॉजिक लगाओगे। तो आप 10 वेरिएबल्स लोगे और 10 नंबर्स उसमें स्टोर कर दोगे, एंड देन 10 टाइम आप प्रिंट कर दोगे। ओके, तो सी इट हियर। अगर आपको मैं ये कहूँ तो आप यही काम करोगे मैम, a इक्वल टू 1 b, या आप कहोगे कोई नहीं मैम हम 10 लाइनें क्यों करें, हम एक में भी कर सकते हैं। a b c d e f g h i, सपोज इतना कर लिया आपने, फिर उसके पास से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप ये कहोगे कि मैम हम 10 लाइनों में लिखने की जगह हमने एक लाइन में ये लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड फिर उसके बाद से आप कहोगे कि मैम हम 10 लाइनों में प्रिंट करने की जगह हम एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में लगा देंगे, लाइक दिस प्रिंट a b c d e f g h i, ओके, एंड देन j। तो हमने एक 2 लाइनों में हमने तो ये काम कर दिया, फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? ओके, हमने 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर दिया, जो आपने टास्क दिया हमने इसे 2 लाइनों में कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। बट अगर मैंने आपको ये कह दिया कि आपको 1 से लेके 500 तक नंबर प्रिंट करना है, सो आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, इसको भी हम 2 ही लाइन में करेंगे, क्योंकि हमें पाइथन प्रोवाइड करता है कि हम इस तरह से असाइन कर सकते हैं। इट्स ओके, आप 2 लाइनों में प्रोवाइड तो कर दोगे इसको, 2 लाइनों में आप इसको कोड को लिख के दिखा दोगे, बट इट विल टेक टू मच टाइम एंड यू विल गेट इट इरिटेट, आप खुद ही इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि मैं ये 10 लाइनें लिखने में मीन्स 10 इसके लिए 10 इसके लिए 10 बार कॉमा लगाया मैंने, और 10 बार यहाँ पे कॉमा एंड वेरिएबल्स लिखे, तो आई गॉट इरिटेट हियर। ओके, लेकिन अब जब 500 टाइम्स तक करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट द इरिटेट। ओके, so what we can do instead of the, और irritate होगा प्लस टाइम वेस्टिंग। ओके, तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते। so to remove this problem, okay, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए what we do, we use here the loop concept। ओके, हम इसी काम को क्या करते हैं, लूप के थ्रू करते हैं, और नो नीड टू राइट मच कोड, आपको कुछ भी ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, आई एम यूजिंग हियर द फर्स्टली वाइल यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो वाइल के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है कि 1 से लेकर के 10 तक जाना है, तो स्टार्टिंग क्या है 1, तो आई एम असाइनिंग हियर द a इज इक्वल टू 1, एक मैंने वेरिएबल में 1 एंटर कर दिया है। आफ्टर दैट वाइल, और यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू राइट हियर द कंडीशन, कब तक मुझे लूप को कंटिन्यूअसली चलाते रहना, जैसे बहुत चलता है उस तरह से हमें लूप को कब तक चलाना है, जब तक a की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, एंड देन कॉलन। ओके, इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड स्टेटमेंट, यू कैन सी हियर कंपाउंड स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो a को प्रिंट करो, एंड आफ्टर दैट एक 1 प्रिंट करने के बाद a में आपको 2 असाइन करना है, तो ऐसे कर सकते, a इज इक्वल टू a प्लस 1, दैट्स इट, सी इट हियर, 1 to 10 we have printed here। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर इसको हम अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़ा, इट हैज, yes you can say कि मैम इसमें आपने तो 4 लाइन को कोड लिखा है, बट इट हैज नॉट टेकन द टाइम, इसने टाइम नहीं लिया। अब जस्ट आपको अगर 500 लिखना होगा, सो राइट हियर द 500, सी 500 तक आपका कोड लिख जाएगा, सॉरी नंबर्स लिख जाएंगे, सी इट हियर, इट हैज रिटन हियर। नाउ ये हमने while के साथ किया है, we can write it, we can do this with the for loop also, so I will take only some minutes, wait for the minute, for I in range, and what is the range function, we will see it later। 1 से start करो और 10 तक जाओ, and then print I, that's it, only 2 lines I have written here, you can see 10। अब अगर suppose we want to store it like 100 till the 100, so 101, I have written here the 101, so you can see here it has not taken the time, इसने मीन्स हमने कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लिया, लेकिन अगर आप ये मेथड यूज करते तो आप कितना टाइम लिखते, अब तक हम लिखते ही रहते। सो नाउ टेल मी दैट, इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ओके, दिस कंसेप्ट इज क्लियर, होपफुली क्लियर सभी को हो गया है। सो नाउ यू ऑल हैव टू रिवाइज इट, और कोई भी प्रॉब्लम आती है सो यू कैन आस्क इन अ नेक्स्ट क्लास।